This meeting is being recorded. In the field of electronics and communication engineering. She had published 50 research articles in SCI, Scopus Index journals, and international conferences. We are truly grateful to have you with us, ma'am, today. So now I request Dr. Priyanka Goyal, ma'am, to kindly take over the session. Thank you, ma'am. Hello, sir. Hello, ma'am. How are you? Fine, sir. How are you? I'm fine, ma'am. I'm fine. I welcome you on the behalf of Department of Electronics and Communication Engineering Thank you, sir. and the Department of PC, RKGIT. Okay. आप ठीक है मैम? हाँ जी, बढ़िया सर. I'm चलो, audible हाँ. ना? Yes, Yeah, ma'am. please. Okay. May I start? Yeah, Yes. please go ahead, ma'am. Okay. Let me share the PPT. Yeah, is it visible? Yes, ma'am. Perfect. It is in slide view or in PPT only? In PPT. Okay, slide view is not there. Okay, I will again do that. Give me a minute. Yeah, I think now it is slide view, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Let's start. Myself, Dr. Priyanka Goyal from Gautam Buddha University, and my name of the school is School of ICT. I'm basically in Electronics and Communication Engineering department. So, as far as FDP is concerned, today I will tell you about the development of low power, high speed optical interconnect architecture. It is actually related to on-chip circuits. On-chip means VLSI circuits. What is on-chip? Like suppose we have a single circuit. We want to establish a connection of that circuit on a single chip. Number of transistors are there? Millions of transistors may be there on a single chip. तो वो सारे जो सर्किट्स हैं वो एक ही चिप के ऊपर अगर हम बना देंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स बट नाउ देर इज अ ट्रेंड ऑफ दिस वी कॉल्ड इट एज अ सिस्टम ऑन चिप that we are connecting all the transistors, all the circuits on a single chip. So it will be very complex. So power minimization is one of the major concern of this interconnect architecture. That's why I have written the name low power, high speed. Speed is also one of the measure that we have to take care of. Power is also one of the measure that we have to take care. But if large number of transistors are there which are connected, then how speed will be increased? If we talk about electrical interconnects, they are also good, but some problems are there. Problems like there is a problem of bandwidth. Bandwidth is one of the major concern if we talk about electrical interconnects. So high impedance matching is one of the major concern if we talk about electrical interconnects. So to avoid these things, we use optical interconnects instead of electrical interconnects. This is called optical interconnect architecture. Means we are establishing an architecture in which we are using a optical means which is in the form of light. Data is in the form of light. So we are transmitting the light
interconnect architecture, and we are transmitting that light from some channel. That channel can be waveguide. Channel can be waveguide if we are talking about optical things, or it can be any medium. It can be free space that light is traveling. And at the output, we are detecting the light, but we have to convert that light into the electrical signal. So interconnect architecture means we are establishing one of the architecture which is composed of transmitter, there is a waveguide, and there is a receiver. Clear? We called it as a on chip. On chip laser, we are transmitting the light. This is our input. Laser is our input. Because laser, its frequency is very, very high. If you know about that, through laser, we can transmit the light in terahertz. Terahertz means 10 raised to the power 12 to the 10 raised to the power 15 hertz. After transmitting it, we have a transmitter. And the transmitter, there is a modulator, like we know in communication system also, there is a modulator. It can be AM, it can be FM, or it can be PAM, pulse amplitude modulation, any kind of modulator is there. We are transmitting it through the modulator. There are drivers behind that modulator. There are electrical logical cells are there in modulator. And then there is a waveguide which transmits that light and we will receive on the receiver. But how it is connected to our VLSI circuit? The question is, as we know, our VLSI design, if we talk about the design, there is a VLSI design cycle. If you know, design cycle, first of all, we have a system specifications. System specification, what we do, that how many transistors are there, what will be the size of that particular chip. Specifications means we are generally specifying the length and width of any of the circuit which we want to establish. Suppose I want to establish half adder or a full adder. I want to establish multiplier. So how many number of transistors will be used there? According to that number of transistors, what will be the area occupied on a particular chip? That particular chip will have a number of transistors. Then we will transmit that data on the chip. So it is shown here that there is a laser, there is a transmitter, there is a waveguide and receiver. After specifying the specifications, there is a logical implementation of that. In logical implementation, we will design it through the transistor. Either it will be PMOS or either it will be NMOS or complementary of both, CMOS. When we design it through CMOS, in the software, what we do, we establish a laser at the input of that CMOS circuit, because data will be transmitting through the laser. As we know, what is the definition of frequency of laser? It will be the number of cycles of laser light. That wave that passes at a fixed point. मतलब एक साइकिल कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजर. तो हम उसको क्या करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ. तो हमारा सी हमें पता है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. At what wavelength we are working for a particular circuit, at what frequency we want to operate, and speed of light is very high, that is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. So using that laser light on a particular circuit, we set the parameters of laser, we set the parameters of our transistors, W by L ratios, channel length, threshold voltage, anything that you want. Then after that, there is a waveguide and then there is a receiver. So going to the next step, there is a optical link architecture. How it is linked? Suppose in a first objective first, we want to propose a laser. Here I am using the vertical cavity surface emitting laser. Like there is an LED. So many LEDs are available in the market. So many. But laser is better than LED. We all know. Because laser is like focused. Its intensity is very high. We can use LED. But laser has a very high intensity. So instead of using simple laser, I am using VCSEL. We called it as a VCSEL. VCSEL.
I will tell you that why I'm using VCSEL. Then next there is a optical channel. Channel is there. We called it as a medium, and as that there is a receiver. Receiver means which receiver I am getting the output at the receiver in the form of light. I don't want that signal in the form of light. I want electrical light. I want electrical signal. Because अगर हमारे पास कोई आउटपुट सिग्नल लाइट की फॉर्म में मिल रहा है, हमें नहीं पता लगेगा कि वो आउटपुट क्या दे रहा है. तो उसकी आउटपुट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन वी विल गेट कि 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, या कितनी आउटपुट आ रही है, जो भी हमें रिक्वायर्ड आउटपुट है. सो व्हाट द फोटो डिटेक्टर इज डू, high sensitivity receiver. High sensitivity receiver means we are using the photo detector that converts the light into the electrical signal. Okay. Next. So roadmap, I will go through this. Then first I will do the laser designing. I will tell you. Then we'll go for the receiver, then waveguide, then how this optical link architecture will be made for higher data rates. And the software I will tell you the side by side. First, if we talk about the VCSCL, and we have to make it energy efficient so that power consumption will be very less. It is acting as a transmitter for optical interconnect. So to use this, this is a design. In the next, this is a design of VCSCL that we have to do. This is actually simulated design. This is not the circuit design. This is a simulated design that I have done it on Silvaco. Silvaco is one of the software. Atlas, Silvaco is there. There are two versions of Silvaco software. There is Atlas and Athena, but we use generally Atlas for our research purpose. So Atlas is there, which is using the step-by-step formation. It is like in industry, semiconductor industry में क्या होता है, हम हर चीज फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में हम हर चीज लेयर बाय लेयर डिजाइन करते हैं. फैब इंडस्ट्री में फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमारा PMOS या NMOS होता है, वहां पे जो भी हमारा सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लेते हैं. देन वी विल डू द रेजिस्टिव लेयर. उसके बाद हम उसको मास्क में लगाते हैं, फोटो रेजिस्ट लगाते हैं. देन वी विल डू द एचिंग. एचिंग के बाद हम उसके ऊपर मेटलाइजेशन करते हैं. तो ये हमारा सारा सेमीकंडक्टर का प्रोसेस है. बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट सेमीकंडक्टर प्रोसेस in industry, how can we use it in terms of software? Because हमारे पास वो चीज पॉसिबल नहीं है अभी फैब इंडस्ट्री को यूज करना, है ना. तो हम we use softwares are available to do that. So one of the software is a Silvaco, and there is also one software that is one also software is there. I will multiphysics software is there, that ANSYS is there. That all the things you can design layer by layer. COMSOL is there. That multiphysics software is COMSOL. There also you can design the things layer by layer. If you want to work on the material side, like for a fab industry, for a fabrication type, you can work. Designing you can do on any of the software. PSpice is there, TSpice is there, and you have LTSpice. There is a Cadence is there, Synopsys is there. So many are available for the designing purpose. But for the fabrication, Silvaco is very good. COMSOL is also very good. ANSYS is also good, but that is literally for the CAD design, ANSYS. So here what we are doing is we are using the materials we are taken, and we have developing the structure layer by layer. You can see on the structure, VCSCL structure, I am using that purple color, blue color. यहाँ पे क्या है, ये सारे materials लिखे हुए हैं. गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ये सारे हमारे मटेरियल्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो हमने क्या किया, वी एस्टैब्लिश अ स्ट्रक्चर ऑफ एयर. व्हाट मटेरियल वी आर यूजिंग, लाइक देयर इज अ बॉटम मेटल. बॉटम मींस we start from the substrate. Bottom metal means there is a material of there. One, there is a lines are there. These lines are the distributed Bragg reflectors that reflects the light. Then there is an active region. Active region means where light will active, maximum light will transmit through active region. And then there is an upper DBR, upper distributed Bragg reflector. So what is the difference between simple laser and VCSEL? यहाँ पे देखने से आपको पता लग रहा होगा
यहाँ पे मैंने जो लाइट एक ऊपर लिखा है ऑप्शन, इसके ऊपर लाइट इज एमिटिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर लाइट लिखा हुआ है, दैट मीन्स लाइट इज एमिटिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द सर्फेस. इफ वी टॉक अबाउट सिंपल लेजर, इट इज एज एमिटिंग लेजर्स, दे आर एज एमिटिंग. सिंपल लाइट पूरे वहां से एज से जा रही होती है, बट हियर कन्फाइनमेंट ऑफ लाइट इज वेरी पर्टिकुलर, like this is showing very wide, but if we generally make it in real life, the laser VCSEL, it will be very thin, and focusing of light is very high, light will be focused very high. So that's why we are using the VCSEL, because the intensity and the width that we are using for laser is very low. Intensity is very high, but the width is very low, it will be in micrometer. Here I have taken the parameters. Suppose first people have started but working on VCSEL. There are there is Hui Lee, that one, she has worked on 980 nanometer wavelength. There is Hui Lee, and there is a E Hartland. He has also worked on the 850 nanometer. So people have worked on very less wavelength, 980 nanometer, because there are 3 window of optical wavelength. Optical terms are there, but actually we are working it for the on chip system. So 980 नैनोमीटर, 850 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है हमारी. सो हमारे पास 3 विंडो हैं ऑप्टिकल वेवलेंथ, फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो. फर्स्ट विंडो में हमारे लो वेवलेंथ आ जाती है 850 to 980 nanometer. Then we have a second window where we are working for 1350 nanometer. Then we have a high third window which is working for 1550. So wavelength is increasing. So people have worked on 980 nanometer wavelength, 850 nanometer wavelength, where they have told that they have also worked very nicely, but फाइबर एब्जॉर्प्शन, एक हमारा जो फाइबर लगा होता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जो कि जिसमें से लाइट पास होती है, द फाइबर एब्जॉर्प्शन एंड डिस्पर्शन इज वेरी हाई इन केस ऑफ लो वेवलेंथ्स. बट अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की, yes, somebody has raised hand. No questions? If you're talking about low wavelength, the fiber dispersion and absorption is high, because absorption and dispersion means if you are talking about the laser light to be transmitted, there is a problem that light will be absorbed more, and dispersion means there are some faults, light will be dispersed from the laser. For high speed line, if you're talking about long distance, we want to transmit data for a long distance, then high wavelength is required, like 1330 nanometer, 1550 nanometer, second window and third window of the optical communication. अगर ऑन चिप की बात करें, सिर्फ ऑन चिप के लिए अगर हमें काम करना हो तो 980 इज ऑल्सो बेटर, 980 and 850 nanometer. तो number of quantum wells, I have mentioned that number of quantum wells is 5. Here quantum wells is active region on the structure. Quantum wells is 6. People have worked on 5 quantum wells. I have worked on the 6 quantum well. This is my work, this slide, 6 number slide, and 5th number slide is already done by some authors. So number of quantum wells are 5. They worked on 980 nanometer. I am telling you advantages of both. And then material used is indium gallium arsenide. There are many materials available in the semiconductor. Basically silicon, germanium, arsenide, indium, gallium, phosphide, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम अपना सेमीकंडक्टर डिजाइन कर सकते हैं. बट जो कंपोजिशन है दैट शुड बी इक्वल टू 1. सी हियर इंडियम इज 0.21, गैलियम इज 0.79. सो द टोटल इज इक्वल टू 1 एंड आर्सेनाइड 0.79 प्लस 0.21, ये टोटल होके कितना बनना चाहिए 1. सो इट विल बी इंडियम गैलियम आर्सेनाइड. डीबीआर जो हमने यूज किया लोअर डीबीआर एंड अपर डीबीआर, तो इसमें अल्टरनेट लेयर्स यूज होती हैं लोअर डीबीआर और अपर डीबीआर में. इट विल बी एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, बट देयर इज द रेशियो इज डिफरेंट. यू कैन फाइंड इट थ्रू द रिफ्लेक्टिविटी. आप कैसे डिसाइड करोगे कि हमें कौन सा मटेरियल चूज करना है? बेस्ड ऑन दियर रिफ्लेक्टिविटी.
कौन सा मटेरियल की रिफ्लेक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई है, या अगर आपने ये वाला लेजर बनाया है, इस वेवलेंथ पे आप ऑपरेट करा रहे हो, तो कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा, ये आपको पूरा लिटरेचर पढ़ के आपको समझ आ जाता है ये चीजें. There is an oxide aperture of 2.5 to 7 micrometer. That I want to tell you कि what is oxide aperture. I told you कि you can make the laser very thin. तो अगर आप जितना ज्यादा oxide aperture करते जाएंगे, लेजर उतना ही ऐसे विड्थ में इंक्रीज करता जाएगा. जितना आप ऑक्साइड अपर्चर कम करते जाएंगे, आपका लेजर की थिकनेस कम होती जाएगी. So 2.5 to 7 micrometer, and it will increase the power requirement and make it energy efficient. सो मतलब जितना ज्यादा वाइड होगा उतना ज्यादा बाहर लेजर जो है एमिट करेगा लाइट, और हमारी पावर की वेस्टेज ज्यादा होगी. सो हम सोचते हैं कि हमारा लेजर कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट बने, बट देयर आर सम लिमिटेशंस कि हम कितना कॉम्पैक्ट बना सकते हैं. ऐसा तो है नहीं कि हम इसको 1 माइक्रोमीटर पे ले जाएं अचानक से. इट इज नॉट पॉसिबल. So we have to make how it can be energy efficient by using. So here they have used make it temperature stable and energy efficient at 5 micrometer. They started varying from 2 micrometer to 7 micrometer, but they will find the energy efficient at 5 micrometer for a particular laser. Then next is the FDTD analysis. What is FDTD analysis? Finite difference time domain analysis of VCSEL. हम क्यों करते हैं FDTD analysis? किसी भी हम कोई भी सर्किट जब डिजाइन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, वी जनरली फाइंड आउट कि दैट सिमुलेशन इज गुड, इट इज गिविंग अस द रिजल्ट्स, बट हाउ डू वेरीफाई दैट रिजल्ट्स. हम कैसे वेरीफाई करें सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स को कि ये हमारे सही हैं. सो जनरली हर चीज का एक मैथमेटिकल मॉडल होता है. तो हियर द मैथमेटिकल मॉडल इज अ FDTD एनालिसिस, फाइनाइट डिफरेंस टाइम डोमेन. ये कहाँ से आया? दिस इज कम फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशंस. इफ यू नो अबाउट मैक्सवेल, he has given five equations. According to these 5 equations of Maxwell, we can find out what is the energy it is minimized, how much temperature is there, what is the number of quantum wells, how is the power is releasing. So ये सारी चीजें हम FDTD analysis को कैलकुलेट कर, जो पैरामीटर्स जो जितने भी हमने यहाँ पे लिए हुए हैं वो सारे हम मैथमेटिकली पुट करते हैं. मैथमेटिकल करने के बाद वी विल फाइंड कि वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू और नॉट. तो जब हम मैच करते हैं सिमुलेशन रिजल्ट्स और अपने मैथमेटिकल रिजल्ट्स में, इट विल बी ऑलमोस्ट सेम, इट शुड बी ऑलमोस्ट सेम. देन ओनली you can say that my results are correct. सो टू अचीव, अब ये जो इसमें मैंने ऊपर मेंशन की, इसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे कि क्या हम इसको हाई फाइबर एब्जॉर्प्शन कम कर सकते हैं, इसके डिस्पर्शन को कम कर सकते हैं, या हम इसे एनर्जी एफिशिएंट और ज़्यादा बना सकते हैं. तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमने विक्सल को ऑपरेट कराया 1310 नैनोमीटर एंड 1550 नैनोमीटर पे ऑफ द विंडो ऑप्टिकल विंडो के लिए. तो दैट्स वाई द नेम इज ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट्स. वी आर वर्किंग फॉर चिप, but the things we are using of optical. If you have heard about the term optoelectronics, so it is related to that. It is the topic of optoelectronics. So to achieve high speed VCSEL, it should work at 1310 nanometer and 1550 nanometer. So the next work is for the 1310 and 1550 nanometer. Here, instead of using 5 quantum wells, we have used 6 quantum wells. क्वांटम वेल्स आर द एक्चुअली एक्टिव एरिया जहां से एनर्जी निकल रही है. जितना ज्यादा उसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी हमारी बाहर आएगी. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 क्वांटम वेल्स ले लिए इंस्टेड ऑफ 5 क्वांटम वेल्स. एंड मटेरियल यूज इज अगेन इंडियम गैलियम आर्सेनाइड एंड द DBR इज एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलियम. पीछे भी देखो यही मटेरियल यूज किया था, मटेरियल मैंने चेंज नहीं किया. एंड द ऑक्साइड अपर्चर डायमीटर इज वेरिड फ्रॉम 2 micrometer to 5 micrometer. They have varied it from 2.5 to 7 micrometer. Here it is varied from 2 to 5, but the results that are obtained are good for the 3 micrometer. The same results obtained are at the 3 micrometer, but here results obtained are for the 5 micrometer. So I think 3 micrometer is better than 5 micrometer because it will be more thinner than 5 micrometer. So it will be better. 6 number of quantum wells increase हो गए, हमारी wavelength increase हो गई, 1310 या 1550 पे हम इसको ऑपरेट कराएंगे, हमारे मिरर लॉसेस कम हो गए, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, हमारी पावर इंक्रीज हो गई. आप इसको और बेटर बनाना चाहते हो तो आप मटेरियल चेंज कर सकते हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कोई और मटेरियल ले लें, हो सकता है उसकी रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा हो उस मटेरियल की, इंस्टेड ऑफ इंडियम गैलियम आर्सेनाइड या एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड.
So the result is at 3.5 micrometer VCSEL is temperature stable and energy efficient. This makes the VCSEL more compact. VCSEL compact हो गया, हमारा जो aperture diameter था वो हमारा decrease हो गया. And then the complete analysis is done through the FDTD analysis, and the maximum power which we obtained is the 0.81 watt at 1560 nanometer wavelength. मतलब अगर हम इसको हाईएस्ट वेवलेंथ के ऊपर ऑपरेट कराएंगे इस पिक्सल को, देन वी विल गेट द मैक्सिमम पावर ऑफ 0.81 watt. That is the approach used for same pixel के लिए अगर हम करें, हमने जब सॉफ्टवेयर पे किया इट गिव्स द 15 50 13 10, एंड जब हमने इसको मैथमेटिकली किया एफडीटीडी एनालिसिस से 15 15 पे, द ऑलमोस्ट रिजल्ट्स आर सेम एंड इट इज गिविंग अ पावर डिसिपेशन ऑफ 0.81 watt. If you have any questions, you can ask from this. So this is a structure for 13 10 and 15 50 nanometer. Upper DBR, lower DBR, quantum wells, top DBR. Now I think the picture is clear to you ki what I want to say ki how materials I have taken, how DBRs are there. One opposite DBR की जो मटेरियल है दोनों अलग अलग है. एल्यूमिनियम के ऑपोजिट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं. देयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैग रिफ्लेक्टर्स. These are the material parameters that I've mentioned for DBRs. For laser cavity, laser cavity means active region. There is a material parameter for aluminum gallium arsenide and gallium arsenide phosphide, because whenever you will go for some simulations, you have to specify each and every parameter of that particular material. Suppose आपने एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड की जगह इंडियम फॉस्फाइड ले लिया, तो इंडियम फॉस्फाइड पहले चेक करना पड़ेगा कि उसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी है, फिर उसकी कंपोजिशन क्या लेनी है, उस कंपोजिशन के बाद क्या वो सुटेबल है उस पिक्सल के लिए. तो जब आप कैलकुलेशंस करोगे या अपने सॉफ्टवेयर में डाल के देखोगे इस चीज़ को कि वो उसको एरर तो नहीं दे रहा है या इसको सिमुलेट कर रहा है, देन यू विल फाइंड कि हाँ दिस इज माय करेक्ट मटेरियल दैट आई एम यूजिंग. So before changing the material, you should know each and everything of that particular thing. Means literature is very compulsory to change the material of particular pixel. Then it is mentioned material is there, the composition is available. See here, aluminum gallium arsenide, it is aluminum 0.12, gallium is 0.88, so it is equal to 1. And again there is aluminum 0.90, gallium is 0.10, and arsenide again it is equal to 1. There is a doping concentration 1 e raised to power 18. Number of layers means 30. 30 30 60, मतलब एक ब्रैग रिफ्लेक्टर की अगर हम बात करें तो एक ब्रैग रिफ्लेक्टर के अंदर 30 एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड वो लगी हुई है. आई थिंक मेरा सिस्टम बंद होने वाला है, फॉरवर्ड लाइट चली गई है, सॉरी वेट, चला जाए तो आई विल ज्वाइन इट लेटर. Yeah, it is there. Sorry. Next, the number of layers are 30 and 30. That means total 60 are there. 30 and 30. Lower distributed Bragg reflector and upper distributed Bragg reflector. 16 lower and 16 upper. And there is a thickness of each layer. What thickness you are taking for each layer? The thickness of 0.983 and there is a thickness of 0.1139 in micrometer, means the thickness is very small thickness. And then there is a reflective and of layer 1 is 3.52 and for layer it is 2.99. So here you can check the materials, you can check the cavities material, and you can check the material properties from this slide. Each and every parameter of that particular is mentioned. These are the simulation results. That how you will get the results on Cellvaco. See here, you can get the current. You can see there is anode current versus anode voltage
for different parameters. I have taken the oxide aperture diameter 2 micrometer. Then I have taken the 3 micrometer. Then I have taken the 5 micrometer. Then I have compared these three. Which one has the highest current is giving? So anode current increases from 2 micrometer to the 15 micrometer diameter as increased from 2 to 5 micrometer. Higher diameter means you are giving the higher current. ये देखो यहाँ पे 2 micrometer था तो it is giving current like this. 3 micrometer पे और increase हो गया, 5 micrometer पे और current increase हो गया. So this is a comparison between anode current and anode voltage. This is when you are increasing again anode voltage versus anode current for 5 volt pixel. Again, this is a combined diagram at 1310 nanometer. This is a mirror loss. Different parameters I have calculated, like this is for photon density, this is for total power, this is for anode current. Like this structure of parameters give you these many results. These many results means anode current versus anode voltage, total power estimated emitted divided by anode voltage. Then there is a photon density versus anode voltage. There is a mirror loss versus anode voltage. These many results you can obtain after giving it to the single program of various steps. Okay, so here you can say that anode voltage is less than 1 volt. The mirror loss is very less. मिरर लॉस इज कांस्टेंट फॉर ऑल द डायमीटर्स, मतलब जितने ऊपर के डायमीटर्स हैं 2 माइक्रोमीटर ले लिया तब भी ये कांस्टेंट है, 3 माइक्रोमीटर पे भी कांस्टेंट है, 5 माइक्रोमीटर पे भी कांस्टेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने ये किया तो ये हमारा रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, दिस रिजल्ट आई ऑब्टेन बाय यूजिंग द मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। मैथमेटिकली हमने इसको सिमुलेट किया, देन आई हैव प्लॉटेड इट थ्रू द मैटलैब एंड देयर इज ऑक्साइड अपर्चर डायमीटर वर्सेस DPTH, that is pixel with oxide aperture diameter of 3.5 has minimum value of depth. See here oxide aperture diameter is 3.5. 3.5 means यहाँ पे बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है ये वाला, तो 3.5 मीटर पे हमारा ऑक्साइड अपर्चर डायमीटर की मिनिमम डेप्थ यहाँ पे आ रही है। So the performance obtained is very good oxide for 3.5 micrometer oxide aperture diameter and energy efficient also at 3.5 micrometer diameter. This is an overall conclusion of doing the simulation at 1310 nanometer. Again, I have done it for 15 nanometer because I have mentioned that we have taken the two wavelengths 1310 and 1550. 1310 is second window, 1550 is the third window of optical communication. Sorry, wait. Just a minute, I'm getting. There is a next we have a simulation results at 1550. So there are two windows of optical communication, 1310 and 1550. So at 1310 we have seen the results whenever we increasing the node voltage here, that we are also getting it the maximum for the maximum this one. For 5 micrometer oxide aperture diameter we are getting the maximum anode current. Same way for 1550 nanometer, the total power we have calculated
is this one. The results are totally different. You can see at 1310 we are getting different results, and at 1550 we are getting the different results. So total power emitted versus the anode voltage. So at 1510, 1540, 1580, that means the 1550 is the middle third wavelength, but we can vary that range also. We can start from 1550 and we can go till 1580 or 1570, 1560, but generally we say that window is 1550, window is 1310, window is 980 nanometer, but there is a range of that particular wavelength. Okay, so here I am giving it for 1510, 1540, 1580, and there is a total power emitted. There is a total anode current is also there. This I have shown the already the combined graphs of these three, and there is a absorption is there, which 1510, 1540 and 1580. So we observed the maximum absorption at 0.5. You can see the diagram. There is a maximum absorption of 0.5, the blue line, which is giving you the maximum value at 1517 nanometer. And till 1 volt. VCSEL does not give any power. अगर हम पावर की बात करें तो 1 वोल्ट तक ये बिल्कुल स्टेबल था, उसके बाद हमारा पावर राइज स्टार्ट हुआ. जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, there is a slight variation in the anode current. There is a slight variation in the anode current. You can see from 1 volt to the higher line. So again, there is a transmission reflectivity. You can calculate from this parameter. You can say at 1510, at 1540 and 1550 nanometer. There is a wavelength versus transmission graph. Maximum reflectivity and minimum reflectivity. You can see at 1540 nanometer. The maximum 1540 means the red line. This one, the red line. There is a minimum reflectivity and maximum transmission. There is a opposite, both are opposite. Means transmission is maximum, reflectivity is minimum. So at 1540 nanometer, VCSEL is showing maximum reflectivity and lowest transmission. For emitting a particular wavelength, reflectivity should be appropriate. If we too highlight will get trapped inside wavelength. If it is too low, then the output power will be very low. Okay. This is the analysis of power that has also been done mathematically by using Fabry-Perot laser. There is a calculation behind this laser, the total power. These are the mathematical formulas available in the book. You have to just put the values and you have to calculate the results through by putting the values of NP, VP, tau P, R1, R2, R3 resistances. There is a correlation factor. You have to find the RH. Average error means what the simulation results and what are your mathematical results. What is the difference between these two results? It is giving you 0.9919 and there is a power conversion efficiency should be less than 5%. So next, the same VCSEL is operated by using the FDTD. FDTD means finite difference time domain. There also a software is available to do the FDTD analysis that is called as a numerical software. These softwares are actually not available open source, आपको नहीं मिलेंगे. But some, if you will download it from some by some sources, it will take very large time to simulate the devices. If you want to make one only simulation, it will take 3 hours to 4 hours for one simulation only. So it is better if you will use a licensed version of both the softwares, numerical as well as the Silvaco. So this is the VCSEL structure using FDTD. This structure, the green one is there. Figure number 27 is mentioned here from my thesis. It is green in color. You can say it is like we are trying to make it the fourth one. The last one is your complete one. See, their x-axis, y-axis defined. This is the last one. Again, it is defined, and like FDTDs, we have to define the electric as well as magnetic parameters.
है ना. मैक्सवेल इक्वेशंस हमें यही कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पूरा उसके अंदर लगाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट्स. सो हियर आल्सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस आई हैव डिफाइंड द h पैरामीटर्स x एंड curly e by curly t ex curly hy by curly t. तो प्लेन के अंदर हमारा ये z डायरेक्शन में कैसे वर्क करता है. Plane wave sources having wavelength 1550 nanometer are used to inject electromagnetic, means electric field as well as magnetic field. We have to define in our structure that what is the pointing vector of that particular structure, what is the amplitude, what is the time. Here this is the input wave, that real time signal of a plane wave source. Plane wave source means we are taking some input. This is the input of real time signal, amplitude versus time. We are giving this input to this our VCSEL that we have prepared from x-axis to y-axis, and these are the equations that have been used in the background for a plane wave in the z direction. See, here it is also mentioned that the VCSEL layers along with added monitors. Monitors means we are adding electrical as well as the magnetic properties of anything in the frequency domain in this structure while we are making it on the software. This is the design parameters of VCSEL structure. Substrate material, gallium arsenide, refractive index, lower dBr material, refractive index, lower dBr. Again, we have to mention all these things that we have taken in the Silvaco software, because it is the this one is your mathematical kind of thing. Gallium arsenide, lower dBr, the same dBrs are there. I have taken the thickness of that dBrs. Then 6 quantum wells are there, again that I have taken. Active region is 4.7, upper dBr is 30, wavelength range is 1550 to 1580 nanometer. These are the simulation results at 1550 nanometer using FDTD. Means as a light will move from lower dBr to the upper dBr, the value of the electric field increases. So this is the first figure. Figure number A is left hand side and figure number B is the right hand side. In left hand side you can see there is minor change. You cannot see that change, that electric field is changing. But at the last figure, in the last figure, the curves are changed totally. This is the first figure, that upper one, top upper one. And there is a top upper one of right thing. You can see there are two waveforms. First waveform blue one has a maximum intensity and second also has a 0.5 maximum value of electric field. सो जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे अपर डीबीआर की ओर, हमारा क्या था, लोअर डीबीआर, एक्टिव रीजन, अपर डीबीआर, कि जैसे जैसे हम अपर डीबीआर पे मूव करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी 0.5 वोल्ट से 1.6 वोल्ट तक. सी दिस वन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. हियर वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1.6 इन द बिलो राइट हैंड साइड. बिलो बिल्कुल लास्ट में जो आपकी फिगर है उसमें 1.6 मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की. सो इट गिव्स यू द मैक्सिमम वैल्यू. सो यहाँ पे हमें पीक्स ये चीज डिपेक्ट करते हैं हमारे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस टाइम के अंदर हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी. सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है यानी हमारी लाइट मैक्सिमम है, यानी जो हमारे डीबीआर्स हैं वो मैक्सिमम लाइट जनरेट कर रहे हैं. लोअर डीबीआर टू द अपर डीबीआर. अपर डीबीआर पे हमें क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वहां से आ रही है. तो रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड. The same, there is a pointing vector that you are getting. Pointing vector is there, the first figure and the last figure. You can see in the first figure it is only one waveform is there, and in the last there are two waveforms are there which is having the maximum value. See, the pointing vector forms a time average magnitude. S is equal to 1/2 and em square. So यहाँ पे हमारी 1550 नैनोमीटर पे पॉइंटिंग वेक्टर इंक्रीज हो रहा है हमारा 0.02 वॉट पर मीटर स्क्वायर से 0.009 वॉट पर मीटर स्क्वायर फॉर द अपर डीबीआर. जैसे जैसे हमारी लाइट मूव करती है फ्रॉम सबस्ट्रेट टू द अपर डीबीआर. सी दिस इज अ रिजल्ट मेंशन्ड इन फिगर बी, द bottom of the right figure, which is the maximum highest figure value that gives you the value 0.009 watt per meter square, the highest value. This is a pointing vector. Again, this is for magnetic field. We have calculated electric field, magnetic field, pointing vector. So the magnetic field will give you the maximum value of, here it is 0.009
the last figure is I think 0.009. 0.0054 से हम स्टार्ट हुए थे. जैसे जैसे लाइट हमारी ऊपर मूव करती गई, लोअर डीबीआर से हम अपर डीबीआर की ओर जाते रहे, हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आई दैट विल बी 0.04, varies from 0.004 to the 0.009, which will give you the maximum value of the magnetic field. That means the our value of light also increases as will move from lower dBr to the upper dBr. और यही हमारे लेजर का फंक्शन है. लेजर भी हमारा यही कहता है कि we have to, our light should be maximum at the top of the laser. तभी हमें पता लगेगा कि लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या थी जब वो वहां से निकली. So this is a transmitted optical power of VCSEL. We have used the DFT monitor, discrete frequency transform monitors, to get the transmitted power versus wavelength. DFT monitor 1, monitor 2, monitor 3, monitor 4. हमने 4 monitors लगाए इसके पास. There is a transmitted power and wavelength. Wavelength is 1550, 15.3, 4, 5, 6, and there is a transmitted power of 0.3 to 0.3, and you are getting these waveforms. Here you can see the DFT monitor 1 is used. For DFT monitor is very less, है ना. 4 मतलब green color, 3 मतलब there is a orange color. You can see these are varying, but green color जो DFT monitor लगाया उसकी वैल्यू सबसे कम है 1550 नैनोमीटर पे. This is a 1550 नैनोमीटर. यहाँ पे उसकी सॉरी 1550 नैनोमीटर पे यहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे कम है और ब्लू पे इसकी वैल्यू उससे ज्यादा है. अगेन यहाँ पे हम ट्रांसमिटेड पावर देखें तो हमारा इसके ऊपर क्या है, सबसे ज्यादा है और ग्रीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना. तो यानी कि 0.81 वॉट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0.81 आ रही है. 0.2 से नीचे का पैरामीटर देखें 0.8 और 0.2 के बीच में, दैट विल बी 0.81 एट 1560 नैनोमीटर. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर जो मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करके बताई थी कि हमारी 0.81 आ रही है. तो यहां से भी हमारी कितनी आ रही है, 0.81 वॉट आ रही है. So this is what that FDTD analysis is helpful in obtaining the results in verifying the things by using the Maxwell equations. Background में हमारा ये जो काम चल रहा है ये Maxwell equations है. हम इसको कर सॉफ्टवेयर पे रहे हैं, that is a numerical software I told you. But results matching that how electric field and magnetic field pointing vector are used to calculate the total power and how actually light is increasing from bottom dBr to the top dBr. That has been calculated by this transmitted optical power by using some software. This is a spectrum you are getting. Spectrum is also important कि जब लाइट बाहर आ जाती है तो उसका स्पेक्ट्रम क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर क्या है जो लाइट हमारी बाहर मिल रही है. दिस इज अ फार फील्ड एनालिसिस. हम कहते हैं ना कि कोई लाइट है सेंटर में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जो सेंटर पॉइंट है वहां पे सबसे ज्यादा लाइट होनी चाहिए. यही हमारा लेजर का कॉन्सेप्ट कहता है कि लाइट शुड बी कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर थिंग सो दैट कि हमें पता लग जाए यहाँ पे लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी है. तो दैट इज अ फार फील्ड एनालिसिस. आप देखो कि दिस वन फार फील्ड, फार फील्ड, फार फील्ड. This one is the first wave, this is the second wave and this is the third wave. Both are opposite. Upper टॉप वाली और लोअर वाली बिल्कुल ऑपोजिट है. मतलब यहाँ से हमने लाइट ट्रांसमिट करनी स्टार्ट की और टॉप में This जाके meeting बिल्कुल is being recorded and summarized. And this is a amplitude versus far field analysis. This is ux is equal to sine theta cos theta. These are the equations that are going. And for lower dBr and upper dBr is a 1550 nanometer wavelength. So this work I have told you 980 nanometer wala ye already kiya hua hai, and this work is my work, that 1550 nanometer and 1310 nanometer. That how wavelength, number of quantum wells, material, dBr, oxide aperture diameter, its analysis is done in the proposed work. So the overall conclusion of this VCSEL only, this is the first part of your complete optical interconnect architecture, that the VCSEL is energy and power efficient and have very low mirror losses, and the count of quantum well plays an important role to play the threshold current. कि हमारा maximum current कितना use हो रहा है, हमारा diameter कितना है, 3 to मैक्सिमम 3.5
माइक्रोमीटर डायमीटर को बेस्ट निकाला है टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रपोज्ड VCSEL इज एनालाइज्ड यूजिंग FDTD मेथड. There is a electric field, magnetic field and pointing field vectors are there, you can calculate, and there is a projection of light also from for 1550 nanometer. That will be the maximum power, that is 0.81 watt power is at 1560 nanometer wavelength for a peak value of voltage 1.6 volt and 0.009 volt per meter square for FDTD method has been calculated. So approach that I have used is simple simulation of Germany. This is for another. This we have completed the VXL part only. That is the first part. See this one. So this one, design of VCSEL laser. So this VCSEL has been covered. That how will you design it? This is one of the important thing. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन चारों चीज़ों में से यही है कि आप विक्सल डिज़ाइन कैसे करोगे. आप कोई आर्किटेक्चर का अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, ऑन चिप आर्किटेक्चर अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, सो हाउ विल यू वेरीफाई इट? So to verify it, we have to design it first by using different parameters, by using different layers, or by changing the number of layers. Suppose I have taken the 60 dBr layers. You can try कि अगर आप इसको 40 dBr लेयर में आप उसको सक्सेसफुल कर लो by changing some material. हो सकता है ना कि हम मटेरियल चेंज कर दें, हो सकता है सेम चीज़ हमारी 40 dBr लेयर में जाए तो हमारा साइज कम हो जाएगा उस लेज़र का. तो आप इस तरह से अपनी चीज़ों को कम या ज़्यादा करके थोड़ा लिटरेचर के अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकते हो अपने लेज़र की मटेरियल को. सो दिस इज अ डिवाइस बेस्ड, वी कैन से this is a device based VXL simulations or research work. You can ask questions if anyone has. Give me 1 minute. Drink water. Okay, so next move on with the photodetector. It is also based on the same policy that photodetector as well as your VXL, we can make it using Silvaco software only. I have made it. But the thing is कि डिफरेंस क्या है दोनों में. आप जब डिज़ाइन करते हो तो डिज़ाइन करने में डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में है. फोटो डिटेक्टर का डिज़ाइन डिफरेंट है और आपके विक्सल का डिज़ाइन डिफरेंट है. फोटो डिटेक्टर इज एक्चुअली कि आपका फोटो डिटेक्टर सेंसिटिव कितना है. जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतना जो लेज़र ने आपको करंट भेजा है, जितना करंट आपके लेज़र ने भेजा है उतना ज़्यादा जो आउटपुट में हमारा आ रहा है उसको रिसीव करेगा. सपोज हमारे लेज़र की सेंसिटिविटी कम है तो हमने आउटपुट में कितना भेजा, हमने हमारा आउटपुट करंट कितना जनरेट हुआ, अगर वो उसने पूरे तरह से उसको मेजर नहीं किया देन व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजर जो हमने लेजर डिजाइन किया है. सो अगर हम पूरा ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं तो वी हैव टू टेक केयर नंबर ऑफ थिंग्स. दिस इज ओनली द सिमुलेशन पार्ट आई एम शोइंग यू. बट अगर हम एक्चुअल में जो कंपनीज जो हमारे सिस्टम्स डिज़ाइन होके आ रहे हैं या इंटेल डिज़ाइन कर रहा है या और भी कंपनीज हैं जो डिज़ाइन कर रही हैं, अगर उन्होंने ये चीज़ें एक एक पैरामीटर को नहीं देखा तो हाउ दे विल मेक सम बेस्ट सिस्टम फॉर यू. हम कह रहे हैं ना कि हमारे पास जो अभी AI के बहुत वर्क स्टेशंस आ रहे हैं, AI बेस्ड हमारे पास कंप्यूटर्स आ रहे हैं. उन AI बेस्ड कंप्यूटर्स में हमारे पास क्या चीज़ है, यही सब चीज़ें तो है. एडवांसमेंट क्या है कि वो इतने फास्ट हैं. अगर हम नॉर्मल हमारे इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्ट्स की बात करें तो आई थिंक वो कभी इतने फास्ट नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द बैंडविड्थ प्रॉब्लम्स, है ना. तो उन चीज़ों को फास्ट करने के लिए क्या किया गया,
उन चीजों को फास्ट करने के लिए ही ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट आर्किटेक्चर का यूज किया गया। तो अभी जितने भी हम इंटरनेट लॉन्च किए हैं नए वाले सिस्टम्स, वो इसीलिए इतने फास्ट हैं, बिकॉज अगर हम एआई का एक प्रोग्राम उनके ऊपर रन करेंगे, अगर हमारे पुराने सिस्टम्स हैं तो वो रन नहीं कर पाएंगे, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, है ना। तो उसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको कंप्लीट करने के लिए दे हैव मूव्ड ऑन टू द ऑप्टिकल थिंग्स। ऑप्टिकल थिंग्स से मूव होने की उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। Okay, so we have used here the silicon on germanium on silicon photo detector. हम जनरली जो है कोई भी फोटो डिटेक्टर, जो कोई भी मटेरियल हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस क्या रहती है सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करने के लिए? या तो हमारे पास सिलिकॉन रहती है या हमारे पास जर्मेनियम रहती है, बिकॉज सिलिकॉन जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है और कॉस्टली भी नहीं है। बट अगर हम कोई और मटेरियल पे जाते हैं तो हमें उसकी पूरी कंपोजिशन देखनी पड़ती है पहले, then we can use that for our particular system. So here simulation of germanium on silicon photodetector means germanium as well as silicon photodetector is used, and again there will be a DBRs, there will be electrical magnetic properties, the FDTD solver is there, the device simulation is there, everything is same, but only the device is different for the photodetector. See, this is a photodetector, germanium on silicon photodetector, which gives you the excellent performance. एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का मतलब है कि उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। उसकी सेंसिटिविटी दैट आई हैव कैलकुलेटेड इज 1 एम्पियर पर वॉट एट 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ इज डेमोन्स्ट्रेटेड। दिस इज हाउ इट विल गिव यू द रिस्पॉन्सिविटी और सेंसिटिविटी दोनों आपस में एक ही चीजें हैं। रिस्पॉन्सिविटी मतलब आप कितना रिसीव कर रहे हो, सेंसिटिविटी मतलब जितना उसने कितना वो रिसीव कर सकता था उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। सो हम यहाँ पे डीबीआर इंक्लूड करते हैं, मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि इंप्लीमेंट किए गए हैं। दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ जर्मेनियम ऑन सिलिकॉन वर्टिकल फोटो डिटेक्टर। This is a schematic of germanium on silicon photodetector with DBR inclusion and placing of fingered metal electrodes. ये सारी चीजें, ये जो मैं आपको फिगर्स दिखा रही हूँ, these are made up from softwares. आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर एक छोटे छोटे स्पेसिफिकेशंस दे के आपको उनको लाना पड़ता है अपने उसके स्क्रीन के ऊपर, then you have to make the connections. ये वहां से ही लिया गया। This is a configuration. Configuration में क्या है? DBR and contact positions for different configurations. No DBR, no contacts. No DBR, continuous contacts. DBR enabled continuous contacts and DBR enabled 6 finger contacts. मतलब जो हमने अपना प्रोपोर्शन लिया है DBRs का, वो किस प्रोपोर्शन में लिए हैं हमारे, जो हमने ये कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, ये वाला फिगर नंबर 37। देन नो DBR नो कॉन्टैक्ट्स मतलब कोई लाइट डिटेक्ट नहीं हो रही है। कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट्स मतलब डीबीआर अभी भी इंक्लूड नहीं हुए हैं। सिक्स फिंगर कॉन्टैक्ट्स मतलब अभी हमने उसके ऊपर मेटलाइजेशन किया है, अभी हमने उसको सिर्फ करंट लाने के लिए मेटलाइजेशन प्रोवाइड की है, इलेक्ट्रिसिटी दी है। सो देयर इज अ नो लाइट डिटेक्शन मींस कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज -1 neither contacts node included 0 0, continuous contacts but no DBR 1 and 0, continuous contacts with DBR is 1 1 and there are point contacts with DBR is 2 and 1. Here I have given the point contacts, that is also the fingered contacts, means we are giving the metallization, it is 2 and 1. This is a generation rate. That how लाइट इज जनरेटेड व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, या जो भी हमने डिजाइन किया था उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हुआ, तो इंसिडेंट फोटोन जो थे वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से कैसे अब्सॉर्ब हुए और हमारे पास कैसे रिजल्ट आया। सी हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन एंड दिस इज अ पावर एब्सॉर्ब प्रोफाइल विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। दिस इज 0.0 0.2 0.4 0.6 0.81. The light is going through this, the both almost are same, but there is a minor difference you can say,
there is a minor difference in the power. The red one is more higher in case of this. Red means which has the highest intensity. Here 1, here 9 has a maximum highest intensity. Light side में ना हमारे पास right hand side में वो ग्राफ बना हुआ है जो वैल्यूज बता रहा है 1 पे कितनी है, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, और इधर हमारे पास कितने बता रहा है 0.2, 0.4, 0.6, 0.81. सो यहाँ पे हमारी लाइट कितनी इंसिडेंट हो रही है 0.0 से मैक्सिमम 1 मीन्स रेड कलर. हियर यहाँ पे हमारी कितनी हो रही है 9 इंटू 10⁻³ यहाँ पे मैक्सिमम कब है 9 पे रेड है. सो यहाँ पे पावर कितनी एब्जॉर्ब हो रही है 9th पे मैक्सिमम 0.0 से 0.5 पे रेड कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है. सो जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए हमारे पास अगेन वी हैव डेरिवेशन. P absorption is equal to 0.5 real value of delta P. Delta P is your pointing divergence of pointing vector and it is displayed as a 0.5 real value of IE. थोड़ा ये मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेट करता है, हो सकता है अभी आपको ध्यान ना हो, बट वी हैव टू यूज इट to calculate the complete parameters of our photo detector, and the number of absorbed photons per unit volume will be calculated by dividing the energy P absorption divided by the energy of the photon, that is equal to 0.5 E square imaginary IE. That is your Planck's constant. This is a FDTD analysis of the power absorbed and the generated rate. अगर हम एक फोटो डिटेक्टर हमने विजुअलाइज किया था ये वाला, तो इस फोटो डिटेक्टर के अंदर हमारा मैक्सिमम पावर यूटिलाइजेशन कितना है किसी सर्किट का. सो दैट इज द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड or how the light is actually passing through the device. These are the simulation results of photo detector. You can see the results are very clearly mentioned that there is one responsivity and there is a photo detector. There is a dark current, there is a temperature, there is a current and there is responsivity. डार्क करंट मीन्स मैक्सिमम ब्लैक. डार्क करंट मीन्स जिस टाइम पे हमारा जो फोटो डिटेक्टर वर्क कर रहा था उसमें डार्क करंट जितना कम होगा उतना अच्छा है, अदरवाइज जितना ज्यादा डार्क करंट मीन्स हमारा सर्किट उतना ही खराब है. रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ज्यादा अच्छी उतना ज्यादा हमारा फोटो डिटेक्टर अच्छा. करंट हमारा कितना जनरेट हो रहा है दैट शुड बी मैक्सिमम. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी मैक्सिमम यहाँ पे आई है इट विल बी मैक्सिमम 1. यहाँ पे देखो 1 से थोड़ी सी कम है, 0.9 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो इट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1. यार यहाँ पे गए तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1.1 आ रही है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम विदाउट डीबीआर कर रहे थे और जब हम ये विद डीबीआर कर रहे थे, विदाउट डीबीआर तो हमें पता है कि जो हमने लिए थे ना यहाँ पे वैल्यूज ली थी 0 जब मैंने कहा था मीन्स हमने डीबीआर इंक्लूड नहीं किया फोटो डिटेक्टर के अंदर, तो वो हमारी मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी दे रहा था 1. जब हमने उसके अंदर डीबीआर इंक्लूड कर दिया तो वो हमारी मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी दे रहा है 1.1. मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें 1.1 है जो बिना पेपर्स में थी. जो बेस पेपर था, सपोज मैंने जो पेपर लिया था उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने 1 दिखाई हुई थी, जो मैंने ये ऊपर रेफरेंस वाला रिजल्ट कैलकुलेट किया. क्यों? क्योंकि उन्होंने डीबीआर यूज नहीं किया. मैंने क्या चेंज किया, मैंने उसके अंदर डीबीआर इंक्लूड कर दिया. तो डीबीआर इंक्लूड करने से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत माइनर चेंज आया, 1 से 0.1 चेंज आया, बट इट इज सफिशिएंट कि अगर हमारा कुछ अच्छा चेंज आ रहा है तो इट विल बी गुड फॉर अस, है ना. सो देयर इज अ डार्क करंट, द ग्रीन लाइन एंड द येलो. ग्रीन लाइन क्या है कि हमने रेफरेंस पी सिलिकॉन एनीलिंग की है एंड देयर इज अ डिवाइस सिमुलेशन इन ग्रीन ब्लू कलर. The dark blue color is for the dark current and this is for the point contact for DBR. Here in case of current versus voltage. So you can see the parameters that I have taken it for 300 Kelvin, means 27 degrees Celsius. This is the junction short circuit current and this is a junction short circuit current with respect to DBR. जब हमने DBR इंक्लूड कर दी तो यहाँ पे एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने बनाई हुई है, then when there is a no tungsten contact and DBRs are not there, the responsibility is 1.04 means 1 approximate, and the continuous value of tungsten when no DBR the maximum responsibility is 9. जब हमने DBR इंक्लूड कर दिया it is 0. and yes DBR is included, the maximum value of responsivity is 1.11935. तो मीन्स डीबीआर जब हमने इंक्लूड कर दिए तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई सर्किट की. सो दैट इज द कंक्लूजन दैट विदाउट डीबीआर the photo detector is not that much responsive and after adding DBR the responsivity will increase.
Okay. These are the parameters that has been taken, and the previous work they have taken no DBR, and this is 1550. Everything is same. Everything is same. You can see in my paper, the previous work they have taken 1550. 1550 I have taken. They have used the material germanium on silicon. I have used the material germanium on silicon. They have used the diode PIN. I have used PIN. They have added DBRs. No, they have not added DBRs. They have added the fingered metal contacts. I have inserted the DBR. एंड माई कॉन्टैक्ट स्पेस इज 1.2 माइक्रोमीटर एंड कॉन्टैक्ट विद जो हमने डीबीआर इंक्लूड किया अपनी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं डीबीआरस की व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव कैलकुलेटेड द मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 1 if they have, but my is 1.11. See, with a minor change, whenever you see the literature for doing the research work, there is a minor change in the work, you will get the change in the outcome. है ना? तो आउटकम हमारी इंक्रीज हो गई और मतलब दिस इज अ गुड वर्क it because this work has been published in SCI journals for VCSEL also and this for photodetector also, both have been published in SCI journals. और इसको मैंने दो अलग अलग one more I will tell you that small change, you don't have to change so many things for a particular structure, because जैसे ही आप बहुत सारी चीजें चेंज करते हो ना तो आपके सिमुलेशंस इतने टफ हो जाते हैं और आपके रिजल्ट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि आप उनको कंपेयर भी नहीं कर पाते. तो जब आप एक छोटे से पैरामीटर को लेके किसी पैरामीटर को लेके आप वर्क को कंपेयर करते हो ना तो उस चीज की वैल्यू भी ज्यादा है और आपका काम भी बहुत क्लीनली दिखता है कि आपने ये चीज ली है. जैसे मुझे पता है कि मैंने फोटो डिटेक्टर में सिर्फ एक माइनर सा चेंज किया है. जो प्रीवियस डीबीआर था उसमें नहीं था, फिंगर्ड मेटल कॉन्टैक्ट्स थे, मैंने उसको हटा के क्या किया, एक डीबीआर इंसर्ट कर दिया. So this is the only work I have done, but it is showing the result. Outcome should be better. आप कोई छोटा माइनर चेंज कर रहे हो तो आउटकम शुड बी बेटर. अगर आपका आउटकम थोड़ा कम भी आ जाता है तो आप उस चीज को ये मत लेके सोचो कि आपका रिजल्ट खराब आया. यू कैन एक्सप्लेन इट अनदर वे. दिस इज द मेथड ऑफ डूइंग रिसर्च. कि अगर आप मान लो मेरा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कम आ गई तो मैं इस टॉपिक का टाइटल ही चेंज कर देती. मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके मैं कुछ और चीज अपना दिमाग लगा के कहती कि मैंने इसके अंदर डीबीआर इंसर्ट कर दिए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई. सो बेटर है कि हम इसके अंदर मेटल कॉन्टैक्ट्स ही यूज करें. सो वी कैन एक्सप्लेन इट इन अनदर वे. तो आप कोई भी चेंज माइनर करते हो तो इट डजंट मीन कि इट विल गिव यू द फ्रूटफुल रिजल्ट्स. हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बट हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट रिजल्ट्स, हाउ विल यू एनालाइज दैट रिजल्ट्स, दैट विल बी मैटर. So these are the results. That means high responsivity photodetector has been designed using germanium on silicon with the responsivity greater than 1 ampere per watt, and the proposed photodetector is a waveguide type which maximum power can be absorbed from the waveguide. अब हमने ये फोटो डिटेक्टर जो बनाया है इसको कहाँ पे यूज करना है, इसको हमें यूज करना है वेवगाइड के अंदर. कि जो हम वेवगाइड ले रहे हैं वो वेवगाइड इसमें से मैक्सिमम पावर को कैसे अब्सॉर्ब करे विक्सल की, और विक्सल के साथ जब हम वेवगाइड अटैच करें और वेवगाइड के साथ हम क्या अटैच करें, फोटो डिटेक्टर, तो ये कैसे काम करे. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला स्ट्रक्चर. पीछे चले गए. दिस वन देखो, हमने लेजर डिजाइन किया, हमने रिसीवर डिजाइन कर लिया, बीच में क्या है, ऑप्टिकल वेवगाइड जो हमने डिजाइन, वो channel. This is called the channel. Proposed optical channel is there and there is a laser and there is a sensitivity. तो ये जो channel है हमारा, ये हमें इस तरीके से वो करना है, बीच में लगाना है. ठीक है. See, this is a basic diagram. हमने ट्रांसमीटर डिजाइन कर लिया, हमने अभी रिसीवर डिजाइन कर लिया. हमारी क्या चीज रह गई है, वेवगाइड रह गई है. तो यानी कि वेवगाइड पहले तो जो डेटा आ रहा है पिक्सल से वो डेटा अच्छे से ले, फिर रिसीवर को देते टाइम उसको इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करना है कि वो मैक्सिमम डेटा जो वेवगाइड है वो उसकी पावर को अब्सॉर्ब करके उसमें दे रहा है. तो ये 3 स्टेप्स है जिसके अंदर हमने वर्क करना है. तो हमने फर्स्ट और थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. यहाँ पे चैनल का काम रह गया हमारा. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव फ्रॉम दिस पीपीटी और एनी अदर क्वेश्चंस. सी, ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट. तो इंटरकनेक्ट क्या चीज है? द थर्ड वन इज इंटरकनेक्ट इज योर बेसिकली वेवगाइड, जो कि
इनपुट और आउटपुट को आपस में कनेक्ट कर रही है, दैट इज अ इंटरकनेक्ट. सो डिजाइन एंड सिमुलेशन ऑफ सिलॉक्सेन बेस्ड ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट. तो मैंने एक ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट बनाया दैट इज मेड ऑफ द मटेरियल सिलॉक्सेन और टेलुरियम. सिमुलेशंस अगेन हमने 1310 और 1550 पे किए, तो ये भी हम सिमुलेशंस 1310 और 1550 नैनोमीटर पे करेंगे. See, this is the simulation setup of proposed optical waveguide. This is a material and doping concentration जो हमने ली. अगेन जो भी हम डिजाइन करते हैं हर एक चीज की प्रॉपर्टीज हैं. एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज. यहाँ पे हमने एक पैरामीटर्स लिए हैं, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डोपिंग मटेरियल, हर चीज का मैंने पैरामीटर डिफाइन किया है. तो यू हैव ऑल्सो टू डिफाइन द पैरामीटर्स. ये जो मैंने डिजाइन किया था, दिस इज नॉट फ्रॉम सिल्वैको और एनी अदर, दिस इज ऑन द ऑप्टिज्म. बिकॉज जब कनेक्शंस किए मैंने दोनों के, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था सिल्वैको पे, सो आई हैव यूज्ड द सॉफ्टवेयर ऑप्टिसिम. ऑप्टिसिम पे आप विक्सल पे डिजाइन कर सकते हो. मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आगे इसके ऊपर डिजाइन किया हुआ है कैसे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्पर्शन लॉस वर्सेस वेवलेंथ कैलकुलेट की. हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम ही यूज किया इसको डिजाइन करने के लिए. डॉपिंग किसकी की? टेलुरियम की. देखो डॉपिंग मटेरियल जर्मेनियम एंड डॉपिंग मटेरियल टेलुरियम. उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 3.1% एंड 1%. ये पैरामीटर्स जब आप डिजाइन करोगे तो उसमें पूछे जाएंगे. दिस इज द इफेक्टिव मोड फार फील्ड डायमीटर की मैक्सिमम इंटेंसिटी. देखो 0 पे मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे निकल के आई है. ठीक है, दिस इज वन, दिस वन, दिस वन. This is the far field diameter. This is a model field wavelength, 1310 nanometer wavelength. So LP11 is 1.4469019 fundamental fold. The how much concentration of energy is maximum for the fundamental mode and start spreading. जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे अपना तो हमारे पास दो मोड्स होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड. हम किस मोड में काम करना चाहते हैं? यहाँ पे हमने सिंगल मोड में काम किया जहाँ पे हमारी एक ही वेवलेंथ, या हम एक बार में एक वेवलेंथ और एक पैरामीटर पे काम कर रहे हैं. तो हेयर दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द सेंटर. मतलब जहाँ पे पीक पॉइंट आ रहा है ना, हमारी रेड कर्व है और देयर इज अ ग्रीन कर्व. द पीक पे हमारा जहाँ पे जितनी वैल्यू आ रही है दैट विल बी द आवर मैक्सिमम ऑप्टिकल पावर. See, here are the results for the material loss, dispersion loss and there is a bending loss. Bending loss का मतलब क्या है हमारा, कि कोई ऑप्टिकल फाइबर है वो उस एकदम स्ट्रेट, कितनी भी हम आइडियल ले लें कि हमारी ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रेट है, बट स्टिल देयर आर लॉसेस. कौन से लॉसेस होते हैं? डिस्पर्शन. हमारी वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, कितनी वो अपने ऐसे ट्रेवल करती करती इधर उधर चली गई तो वो डिस्पर्स हो गई अपने पॉइंट से. बेंडिंग मतलब फाइबर हमारा कितना बेंड हो गया. फाइबर एकदम स्ट्रेट नहीं हो सकता आइडियल कंडीशन में. देखिए हो सकता है कहीं ना कहीं बेंडिंग लॉसेज हो, बहुत कम होते हैं बट स्टिल देयर आर. आइडियल कंडीशंस में हम कह देते हैं नहीं है, बट देयर इज एवरी लॉस इज देयर. मटेरियल लॉस यानी कि जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अंदर लॉसेस कितने हैं. तो ये सारे फिगर्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए. ये 1550 पे है, ये 1310 नैनोमीटर पे. ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में आप देखेंगे तो. See, these are the specifications. Siloxane fiber. सिमुलेशन रिजल्ट्स क्या आए हमारे 1310 पे और 1550 पे. सारी चीजें जो हमने 1310 के लिए कैलकुलेट की वही सारी चीजें मैंने 1550 के लिए कैलकुलेट की. मेरे सिमुलेशन रिजल्ट्स क्या आए और पेपर में क्या थे ऑलरेडी. हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड. सी आई हैव शोन इन द राइट टू 16 नंबर रेफरेंस 134. मतलब जो मेरा रेफरेंस मैंने जो लिए ऑथर्स ने जो काम किया उसमें क्या थे. बेंडिंग लॉस मेरा उसमें थे नहीं, मेरा हल्का सा बेंडिंग लॉस आया. कट ऑफ मेरा इंप्रूव हुआ है, डिस्पर्शन मेरा इंप्रूव हुआ है, प्रोपेगेशन लॉस मेरा इंप्रूव हुआ है. ये देखो, यदि एक पैरामीटर भी अगर आपका कोई इंप्रूव कर रहा है कुछ करने के लिए तो यू कैन से दैट यू हैव डन सम वर्क. 1550 नैनोमीटर पे ऑल्सो मेरा प्रोपेगेशन जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है. 1.36 था, यहाँ पे मेरा 0.198 आया है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है ना. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंप्रूव हुई हैं, कुछ एक दो चीजें हैं जो इंक्रीज हो गई हैं. तो यू कैन से दैट propagation loss is minimized when you have designed the siloxane based silicon fiber.
instead of the people they have worked on this one. ठीक है? So this is the fiber you are designing. These are the parameters. Say 1310 nanometer. This is a comparative analysis. 1310 1310 मेरा भी 1310 था. इन्होंने बेसिकली मटेरियल सिलॉक्सेन प्लस फ्लोरीन लिया. मैंने कौन सा लिया? टेल्यूरियम बेस्ड वेवगाइड डिजाइन किया. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. सो आई हैव चेंज्ड हियर द मटेरियल चेंज किया है बस, बाकी सब चीजें सेम है. द प्रोपेगेशन लॉस ऑल्सो there is a change. Previous work there is a 0.34. My propagation loss is improved to 0.33. This is 1.36. My is improved to 0.198. This is cutoff is 4.2. My is 2.36. The bending loss यहाँ पे नहीं था, मेरा आया है, but it is very less. But you have to report it. That bending loss is increased from 0 to 0.0003 dB per kilometer. So how you have to compare your work with the previous work? Simply you have to explain that what change you have done in the previous work. The change done is you have changed the material from fluorine to the टेल्यूरियम. आपको टेल्यूरियम की सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी जब आप इसको किसी सॉफ्टवेयर में डिजाइन करोगे तो, या कहीं पे भी आप डिजाइन कर रहे हो. यू हैव टू टेल द प्रॉपर्टीज. So the single mode fiber simulation is successful. You can also go for multi mode fiber also. But उसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर्स, हमारी चीज़ें बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए. Then you will go for the higher end. या हमारे पास बहुत licensed high level versions होने चाहिए चीज़ों को करने के लिए. Wait. ठीक है. तो सिंगल मोड फाइबर इज सक्सेसफुल. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज concentrated towards the center, that is towards the fundamental mode. The shows that concentration of energy reduces as we traverse away from the fundamental mode. Fundamental mode means single mode that we have chosen. उससे हम जितना दूर जाते जाएंगे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी. हमारा जो फाइबर है वो हमने देखा कि 1550 नैनोमीटर पे और ज्यादा अच्छा. ये देखो आप, हमने 1310 नैनोमीटर पे डिजाइन किया. Is giving some problem.
Hello, sorry, there is a disturbance. Yes, ma'am. Now connected. So let's start from the point where we have left. We'll share the slide. This meeting is being recorded and summarized. So I think it is visible to you. Yes, ma'am. So the fiber has been designed at 1550 nanometer and 1310 nanometer with the propagation loss of 0.331 and propagation loss of 0.198 dB per kilometer. Okay. So the approach that have been used is the design and link all the optical blocks of the optical interconnect architecture. There is a photodetector, there is an optical interconnect. The same has been analyzed the results at DWDM technique. There are so many techniques of optical system. There is a eye diagram we have to calculate, and we have to calculate the Q factor analysis at 5 Gbps and 10 Gbps. Because this optical interconnect architecture I have analyzed at 5 Gbps and 10 Gbps means they are working at very high frequency. We can operate them at the terahertz frequency also. So this I have told you that I have made the complete architecture. I have, after simulation, I have done completing the complete architecture on the OptiSim software. There is one OptiSim software. There is option of drag and drop only. That you have used some lasers, you have used some photo detectors, the same frequency that, see, there are lasers. These are center ones. These are laser. There is one multiplexer, DWDM technique I have used by using multiplexer is there, and these are the spectrum analyzer, means that will give you the results. There is a photo detector, there is a eye diagram, receiver, and this is the for output, like we use CRO, there are different spectrum analyzers. These are CROs, oscilloscopes are there where you can see the eye diagrams. See, so complete architecture has been simulated by using the optical link architecture. See, this is a bit rate. I have used 5 Gbps. This is wavelength 1550 nanometer photo detector. I have used a PIN photo detector. This is a exponential type of the thing. So all these parameters that I have taken on the simulation by completing the architecture. देखो आपने तीनों चीजें डिजाइन कर ली, अब इन तीनों चीजों को लिंक कैसे करोगे? इन तीनों चीजों को आपने डिजाइन कर लिया, इनके पैरामीटर्स को चेक कर लिया कि ये मेरे रिजल्ट्स आए हैं, बट जो रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स को किसी लेजर के थ्रू लेना और फिर उसमें फोटो डिटेक्टर में देना, यू विल यूज सम प्लेटफॉर्म टू कंबाइन दीज थिंग्स. सो आई हैव यूज द ऑप्टिसिम बिकॉज कोई ऐसा एनवायरनमेंट मुझे मिल नहीं रहा था कि जिसमें मैं सेल वैक्यूम में इन तीनों चीजों को कंबाइन कर दूं. देयर वाज नो प्लेटफॉर्म लाइक दैट. देयर वाज नो प्लेटफॉर्म इन न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर आल्सो. सो ऑप्टिसिम वाज देयर, जहां पे हम सारे ऑप्टिकल के डिवाइसेस जो मैंने बनाए उन तीनों को मैंने कंबाइन करके दिखाया. These are the eye जितनी ज्यादा ओपन होगी उतना ज्यादा वो क्लियर शो करेगा. So this is a eye opening diagrams. This is a amplitude versus time graphs. These different everything, for everything, like I have shown that eye diagram of 10 Gbps rate at 5 Gbps rate. आपकी आई ज्यादा क्लियर है, यहाँ पे आई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है. तो इस तरह से हमारी चीजें जो है हमें पता लगता है कि which one is better. सो क्वालिटी फैक्टर फॉर 5 Gbps एंड 10 Gbps मैंने कैलकुलेट किया. क्यू फैक्टर जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा मेरा रिस्पॉन्स अच्छा होगा सिस्टम का. दिस इज अ क्यू फैक्टर, दिस इज अ पावर फॉर ट्रांसमिशन एंड दिस इज अ पावर फॉर रिसेप्शन. द क्यू फैक्टर फॉर ट्रांसमिशन इज दिस, क्यू फैक्टर फॉर रिसीवर इज दिस. इट शुड बी कैलकुलेटेड इन डेसिबल मीटर्स. सी
Here I can show diagram. देखो इस डायग्राम में देखो यहाँ पे हमने लेजर्स लगाए, लेजर 1, लेजर 2. वी हैव ऑपरेटेड देम एट 1550 नैनोमीटर. आप इसको 1310 नैनोमीटर पे भी ऑपरेट करा सकते हो, 1510 नैनोमीटर पे ही नहीं. देयर इज अ दिस वन बिट एरर सीक्वेंस जनरेटर इज देयर स्टार्टिंग में, जो कि पैटर्न दे रहा है 0101, विच पैटर्न यू आर गिविंग, and there is a user detect bit sequence is there, and then oscilloscope means you are checking the input also, that what input you are giving, and after that you are getting the spectrum analyzer means there are two terms. One thing you can check it on CRO, one thing you can check it on spectrum analyzer. Spectrum analyzer you will get the output in terms of frequency, and in time domain if you want you get it on the CRO. तो spectrum analyzer पे आप देख के easily बता सकते हो कि frequency का कितना यूज हुआ है, अपर बैंड क्या है, लोअर बैंड क्या है. तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रम एनालाइजर का यूज किया. एंड देयर वन इज ऑल्सो टाइम डोमेन विजुअलाइजर इज देयर, यू कैन सी. एंड देयर इज एन आइडियल मैक्स मल्टीप्लेक्सर इज देयर, कि जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं मक्स की, उसमें से एक हमने यहाँ पे ले ली मक्स के थ्रू, जो मक्स का मेन फंक्शन होता है. देन दिस इज अ RF स्पेक्ट्रम एनालाइजर, आई स्पेक्ट्रम एनालाइजर, एंड देयर इज एन इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑसिलोस्कोप. तो ये पैरामीटर्स हमने उसके बेस पे डिफाइन किए. तो यही जो हमें यहाँ पे आउटपुट्स आ रही है, मैं आपको शो करना चाह रही थी कि मैंने वहां पे उसी तरीके के वो लगा रखे हैं आगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके. तो जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाए हुए हैं उसी के थ्रू हम अपनी आउटपुट चेक कर रहे हैं. ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर के अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थी. दीज आर द क्यू फैक्टर्स. सो अगर हमने कंपैरिजन किया, अगेन आई हैव मेड ए कंपैरिजन चार्ट बिटवीन दस. देयर इज अ वेवलेंथ 1550 नैनोमीटर पे हमने किया, 1310 नैनोमीटर पे लोगों ने ऑप्टिसिम के थ्रू कर रखा था. तो हमने 1310 पे भी बनाया था विक्सल 1550 पे. सो आई हैव टेकन द 1550 एट 10 Gbps. द क्वालिटी फैक्टर हमने नहीं निकाले, ये हमारा कुछ इंप्रूव नहीं हुआ, बट द पावर दैट वी ऑब्टेन्ड एट 10 Gbps इज 20 डेसिबल्स. और जो पावर है हमारी दैट विल बी द 20 डेसिबल्स. ये हमारी मतलब पावर ट्रांसमिशन और पावर रिसेप्शन. पावर ट्रांसमिशन एट 5 Gbps, पावर रिसेप्शन एट 5 Gbps. तो ये प्रीवियस वर्क की इतनी थी हमारी, ये सब नहीं मिली हमें कैलकुलेट होकर, ये एप्लीकेबल नहीं है. सो जो परफॉर्मेंस थी वो हमने देखा कि हमारा जो क्वालिटी फैक्टर था इस पे 10 Gbps, दिस वन, हमारी आई ओपनिंग डायग्राम 5 Gbps पे वैसे बेटर आ रही है. अगर हम देखें तो 1510 नैनोमीटर के लिए इन कंपैरिजन टू 10 Gbps. एंड हमारा जो पावर रिसेप्शन है ये एप्लीकेबल नहीं है. रिसेप्शन एट 10 Gbps इज 20 dB. So SNR is calculated for 1-2 channel signal to noise ratio, and there is a 1550 nanometer for I diagram, signal diagram. तो signal received 18 to 19 states. और जो हमारी जो जितनी भी ये सारी टेक्नोलॉजीज ये हमने यूज की हैं, दैट विल शो कि इट विल इम्प्रूव द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर चैनल. ठीक है. So conclusion is कि we have taken the optical interconnect architecture and for low oxide aperture diameter from 2 to 5 micrometer. There is one thing I want to calculate in this, but I had not calculated still so far. This, my objective is incomplete, still incomplete, because I want to calculate it for estimate interconnect length. That what estimated interconnect length I want to use for this optical interconnect architecture. My objective is incomplete here, but I am working on it. As soon as we'll proceed, as soon as I will cover it, I will go for the research of this research paper for this purpose. So this is my work, and this objective is incomplete still. That's why I have not shown here. This is not applicable, not applicable. And I have to work on it for estimated interconnect length. मीन्स हमने अगर जो ट्रांसमीटर, रिसीवर और चैनल को जो कनेक्ट किया है उसकी एस्टिमेटेड इंटरकनेक्ट लेंथ क्या रहेगी जिसके लिए मुझे यूज करना है, वो कितनी लेंथ में ये हमारा सिस्टम जो है वो डिजाइन होगा. ये मेरा ऑब्जेक्टिव इस ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट आर्किटेक्चर के लिए अभी रह गया है, जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ. ठीक है. So that is the improved architecture has been performed, and which is for valid for 3.5 micrometer oxide aperture diameter, and best suitable 1550 and 1310 nanometer are applicable for long distance. 980 850 is used for small distance, like you have used only for small chip
के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो 859 इट इज ऑल्सो बेटर ऑप्शन। एंड हमारी जो पावर कंजम्पशन आई उसके लिए वो 0.81 वॉट थी 1550 नैनोमीटर के लिए। देन आई हैव डिजाइंड द ऑप्टिकल रिसीवर silicon and germanium optical receiver which gives you the maximum responsivity of 1.1 ampere 1 watt when I have used the this photo detector with the with my DBR, not the metal contacts. The responsivity increases. Then I have made the this one. This is incomplete. To develop a model for critical length estimation of optical interconnect. Till I have not reached the critical length estimation. I have calculated the parameters. I have done everything, but for this critical length estimation, I have to go for some other research that how will you find that your material, your parameters जो भी आपने लिए उसके लिए आपको मिनिमम लेंथ के साथ आपने अपना स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। क्रिटिकल लेंथ एस्टिमेशन, हाउ विल यू फाइंड दैट? सो आई हैव इम्प्रूव्ड द इनपुट आउटपुट लिंक डिजाइन, मतलब वेवगाइड डिजाइन करना। इस वेवगाइड डिजाइन पे जो मैंने किया था इसके ऊपर भी मेरा एक SCI पेपर पब्लिश है, दैट इज इन CSIR इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। वहां पे एक पेपर निकला था इसका, बट दिस स्टिल स्टेप 3 इज माई इनकम्प्लीट। ओके, सो दिस इज अ फ्यूचर स्कोप में आप ये कर सकते हो कि आप मतलब जो काम अभी तक हो चुका है उसका आगे आप क्या करना चाहोगे। मैंने मान लो 3.5 माइक्रोमीटर के लिए किया, या मैंने 2 माइक्रोमीटर पे भी गई बट वहां पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो आप इस चीज को 2 माइक्रोमीटर या उससे लेस पे कर सकते हो बाय चेंजिंग द मटेरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्सल, by changing the parameters of that material, कि आप उस parameters क्या लोगे, रिफ्लेक्टिविटी क्या होगी, उसकी कंपोजिशन कितनी होगी। मान लो मैंने लिखा एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, हो सकता है आप इसकी कंपोजिशन को चेंज करके ही आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकाल लो। तो वैसे हो सकता है और ऑथर्स ने बहुत सारा काम कर लिया होगा अभी इसके ऊपर, बट आई थिंक ऑक्साइड अपर्चर डायमीटर इससे कम पे काम नहीं हुआ है अभी तक। यू कैन वर्क ऑन दैट। देयर इज अ जर्मेनियम फोटो डिटेक्टर इज देयर, you can use any other detector. There it is not possible कि आप सिलिकॉन और जर्मेनियम फोटो डिटेक्टर ही यूज करो, आप कोई और मटेरियल का यूज करके भी अपने सिस्टम को थोड़ा बेटर बना सकते हो, या आप रिस्पॉन्सिविटी की जगह आप किसी ऐसे पैरामीटर पे वर्क कर लो, डार्क करंट पे वर्क कर सकते हो, सो दैट कि डार्क करंट विल बी इम्प्रूव्ड, आपके डिस्पर्शन लॉसेस कम हो उसके अंदर, इस पे काम कर सकते हो। प्रोपेगेशन लॉस पे ऑलरेडी बहुत सारा वर्क हो चुका है, आपको कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी करने के लिए। एंड देर इज फर्दर डेवलपमेंट इन द ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट आर्किटेक्चर। अगर हम जनरली वैसे देखें ना, ओवरऑल जो मार्केट में चीजें आई हुई हैं दे आर ऑलरेडी अवेलेबल। अब जैसे हम इंटेल ने अभी अपना एक निकाला है, एक और प्रोसेसर निकाला है, दैट इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल लिंक आर्किटेक्चर। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वो टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं। तो वहां पे उन्होंने ऑप्टिकल लिंक आर्किटेक्चर निकाला है दैट विल बी ऑफ वेरी हाई स्पीड, तो इसी मेथड को यूज करके उन्होंने किया हुआ है। तो जो जितने भी AI के अभी सिस्टम्स आ रहे हैं, इतने फास्ट सिस्टम्स आ रहे हैं, उन्होंने यही टेक्नोलॉजी को यूज करके वो अपने सिस्टम डिजाइन किए। एनवीडिया वगैरह जो ये सिस्टम्स दे रहे हैं, तो वो इंटेल का प्रोसेसर ही यूज कर रहे हैं उसके अंदर, वही फास्ट प्रोसेसर, सो दैट कि हम उसके अंदर एक अपना प्रोग्राम ट्रेन करें, AI/ML की कोई टेक्निक लगाए, तो वो जो अभी हमारे सिस्टम्स 4-4 10-10 घंटे लगा के हमें बैठना पड़ता है, वो आपको हाफ एन आवर में आपके रिजल्ट्स आपको कंपाइल करके दे दिया करेंगे। सो एज पर वर्जन 2020 अगर हम सिस्टम ऑन चिप की बात करें, जो हमारे मोदी जी का भी सपना है कि हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फैब डेवलप करना है, अगर वो हमारे पास आ गया तो हम सिस्टम ऑन चिप भी खुद से डिजाइन कर सकते हैं। कुछ ऐसा बहुत मेजर कंसर्न नहीं है इसके अंदर। टेलीफोन एक्सचेंज कंपनीज में ये सब हम इसको यूज कर रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस, ये देखो, ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स मतलब जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। आप कोई भी थाउजेंड्स ऑफ डेटा, आप मिलियंस ऑफ डेटा एक बार में कंपाइल करना चाहो तो वो डेटा को ट्रेन करेगा जल्दी से और जल्दी से उसके आउटपुट देगा। तो डेटा सेंटर, सेंसर एप्लीकेशंस, जहां पे भी हम इनको यूज करना चाहें, बेसिकली IoT एप्लीकेशंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गई हैं। जैसे अगर आप कहो कि हमारी अगर कोई फैब इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो वहां पे हम अपने IoT सेंसर्स का भी यूज कर सकते हैं। मान लो हम फोटोरेसिस्ट यूज कर रहे हैं, हम एचिंग कर रहे हैं, या हम मास्किंग कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हम अपने सेंसर्स लगा दें
और वो सेंसर्स हमारा तुरंत डेटा लेते रहें, तो हम बता सकते हैं ना कि हमारा सिस्टम जो रेडी होगा वो कितना उसकी एफिशिएंसी हाई होगी। तो आईओटी का सिस्टम का काम ही यही है कि हम एक पूरा सिस्टम लें, उसके साथ हम अपने सेंसर्स को अटैच करें और हम उसे पूरा 1 सेकेंड का डेटा जनरेट करें, और 1 सेकेंड का जनरेटा फिर उसको एनालाइज भी तुरंत करें। वो कौन करेगा? वो क्लाउड करेगा, क्लाउड एप्लीकेशन करेगी, जो हमारा 7 लेयर स्ट्रक्चर है आईओटी का, उसके थ्रू करेंगे। वो फिर एक अलग कहानी हो जाती है कि आईओटी एप्लीकेशन में आप इसको काम कैसे लोगे, आईओटी के साथ आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे। तो आईओटी हमेशा एज पे वर्क करती है। एज पे मतलब एज पे जहाँ पे सेंसर्स लगाए जाते हैं, वहां पे आप अपने सेंसर्स कनेक्ट करते हो किसी सिस्टम के थ्रू। तो जैसे मान लो मैं कहूँ कि मुझे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर लगाना है, तो हम सॉइल के साथ अटैच करके रख दे सेंसर, तो वो 1-1 मिनट का डेटा देगा ना कि सॉइल अभी सूखी है या गीली है, इसके अंदर मॉइस्चर कितना है। द सेम वे वी कनेक्टेड विद आवर सिस्टम एंड इट विल टेल यू कि इसका 1-1 मिनट का डेटा क्या है। तो वो 1-1 मिनट का डेटा हम ले तो लेंगे, बट उस डेटा का करेंगे क्या? जब तक हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसके ऊपर एआई एमएल टेक्निक्स नहीं लगाएंगे, तो वो एफिशिएंटली हमें प्रोवाइड नहीं करेगा कि हमने जो डेटा लिया वो कितना एफिशिएंट है, वो जो हम काम कर रहे हैं वो कितनी एफिशिएंसी से हम कर रहे हैं। हमने 1 महीना लगा के अपना कोई सिस्टम डिजाइन किया या 1 साल लगा के कोई सिस्टम डिजाइन किया, बट फिर एट द एंड हमें नहीं पता कि वो सिस्टम कैसे काम करे। बट बाय द टाइम अगर हम उसके ऊपर सेंसर्स लगा दें और विद इन 1 मिनट का डेटा हमारे पास 1 दिन का डेटा आ जाए, हम उसको कंपाइल करें, तो हम बता सकते हैं कि सिस्टम इतना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। So that is the purpose of IoT application here. So medical applications, optical interconnects, इन सब में हम यूज कर सकते हैं। IoT applications की बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर बहुत सारा काम, ये मेरे कुछ पेपर्स हैं जो मैंने किए हैं, अभी चलते आ रहे हैं, मतलब ये इसी काम पे पब्लिश्ड पेपर है। जो मेरा ये काम है इसी काम पे पब्लिश्ड पेपर है। ये मेरे रेफरेंस पेपर है जहां से मैंने रेफरेंस लिए करने के लिए बेसिकली एक लेडी है हुई ली एचली, द सेकेंड रेफरेंस आप देखोगे, द सेकेंड रेफरेंस हुई ली एचली एंड फिलिप वोल मूजर, फिलिप मोजर, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया इस टॉपिक पे। जो मेरे को पेपर्स मिले मैक्सिमम इन लोगों के मिले, और ये अभी तक इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग फॉर यूरोप, फॉर IEEE जर्नल ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी यूरोप में किसी फैब इंडस्ट्री में है जहाँ पे ये लोग इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पेपर, इनकी बुक भी है इस टॉपिक पे, अगर आप रीड करना चाहो तो आपको बुक मिल जाएगी ऑनलाइन बहुत इजीली। तो ऑन दिस टॉपिक यू कैन वर्क ऑल्सो। नेचर में इनके पेपर्स पब्लिश है, लॉन्ग वेवलेंथ VCSEL पावर एफिशिएंट। तो ये बहुत पुराने हैं क्योंकि मैंने बहुत पहले से काम करना शुरू कर रखा है, तो अभी ये चल रहा है। तो आप देखोगे तो आपको इसके ऊपर लेटेस्ट विक्सल के ऊपर आपको बहुत पेपर्स मिलेंगे। सबसे ज्यादा रिसर्च अभी इस टाइम विक्सल पे हुई है लास्ट टाइम में, ये सारे रिसर्च पेपर्स हैं। अगर हम कहें कि इन चीजों को, जैसे मैं क्या कर रही थी, फोटो, हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर रहे थे, अभी लोगों ने बहुत ज्यादा काम हो गया इस टॉपिक पे, तो रिसर्च क्या कहती है कि थोड़ा थोड़ा अपने आप को मूव करते रहो, है ना। तो डिवाइसेस जो मैंने अपने सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड से डिजाइन किए हैं, अगर हम इन्हीं डिवाइसेस को ऑर्गेनिक मटेरियल से डिजाइन करें, ऑर्गेनिक मटेरियल समझते हो ना, जितने जो हमारे केमिस्ट्री के मटेरियल्स हैं, मान लो DVB है या और भी, मतलब बहुत सारे, अभी मुझे ध्यान नहीं है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो सारे हम यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। जरूरी नहीं है कि हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके ही अपना सिस्टम बनाना है, वो भी आपका सिल्वैको के अंदर बहुत अच्छे से हो जाता है, एटलस सिल्वैको में। तो आप ऑर्गेनिक लेजर, ऑर्गेनिक LED, ऑर्गेनिक फोटो डिटेक्टर कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, ऑर्गेनिक वेव गाइड। उसके अंदर ऑलरेडी कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जिनको आप लेके सिमुलेट करके देखो, और उनके अंदर आप अपने लिटरेचर को पढ़ के स्पेसिफिकेशंस चेंज करो जो आपको चेंज करनी है। तो जब आप चेंज करोगे देन यू विल गेट कि हाँ मैंने इसके अंदर ये चेंज किया तो मेरा क्या ये सिमुलेट हो रहा है। अगर आपका एरर दे रहा है मतलब आपने लिटरेचर को सही से डाला नहीं है उसके अंदर, मतलब आपकी कोडिंग वर्क नहीं कर रही है। सो सिल्वैको इज अ कोडिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आपको कोड की फॉर्म में अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो अगर आपने कोडिंग के अंदर सही स्पेसिफिकेशंस डाली है तो आपका कोड रन करेगा, और अगर आपने गलत स्पेसिफिकेशंस डाली है तो कोड रन नहीं करेगा। आप सोचो कि मैं किसी भी स्पेसिफिकेशन को लेके अपना सिस्टम डिजाइन करूं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर कंपोजिशन पढ़ के, चेक करके, रिफ्लेक्टिविटी चेक करके उसकी, फिर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट properly. तो flexible devices is also an option.
ऑफ दीज थिंग्स, जो मैंने अभी आपको पूरा सेमीकंडक्टर बेस्ड बताया है, आप इसी चीज को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिसर्च. मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, पूरा पैरामीटर्स ही चेंज हो गए आपके काम करने के, है ना. आप रेड लाइट में करोगे, आप ग्रीन लाइट में करोगे, वो लाइट्स के बेस पे करोगे अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो, है ना. तो वो आपके रिजल्ट्स भी डिफरेंट आएंगे उस तरीके से. इसके लिए जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज किए मैंने आपको बताया, एटलास सिल्वैको इज वन ऑफ द गुड सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत कॉस्टली है, बट ऑर्गेनाइजेशंस अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं. देयर इज ल्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर विच इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर एफडीटीडी एनालिसिस. उसमें और भी बहुत ऑप्शंस हैं ल्यूमेरिकल के अंदर करने के. देयर इज एन ऑप्टिसिम, जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने, ये थोड़ा ईजी है ऑप्टिसिम, जिसमें आप नॉर्मली ओपन सोर्स है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगा. देयर इज एन ओरिजिन. जितने ग्राफ्स बनते हैं हमारे, बहुत हाई क्वालिटी के ग्राफ्स अगर आपको बनाने हो ना, जैसे IEEE स्टाइल जो ग्राफ्स होते हैं, जो जर्नल IEEE पेपर्स के अंदर चलते हैं, तो दैट इज मेड फ्रॉम ओरिजिन. आप ओरिजिन एक बार जाके इंस्टॉल करना, ओपन सोर्स है, या यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखना कि ये कैसे, आप इनके ग्राफ्स देखोगे ना बहुत अच्छे. मैंने आपको ध्यान होगा इसके अंदर एक ग्राफ दिखाया था, वो ओरिजिन के थ्रू बनाया हुआ था, और ऐसा कहीं नहीं बनता. थोड़ी मेहनत लगती है उसके अंदर, बट जब आपको आ जाता है तो यू विल फाइंड कि हाँ दिस इज द बेस्ट. ये देखो ये वाला ग्राफ, दिस फिगर नंबर 25, कितना बहुत क्लियर है, इसकी रीडिंग्स बहुत क्लियर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसके जो पॉइंट्स हैं देखो कितने क्लियरली मेंशन्ड है. और हालांकि सब वेवफॉर्म्स एक जैसी हैं, बट स्टिल बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रही हैं. तो ओरिजिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने ग्राफ्स को बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकते हो. इसके पीछे मैंने एक पावर वाला भी दिखाया था, डॉट 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 DBR लगाए थे, जिसमें मैंने DFT मॉनिटर्स, वो भी मैंने ओरिजिन से डिजाइन किया हुआ है. तो ओरिजिन इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू मेक द ग्राफ्स इन फॉर्म ऑफ IEEE. देन एप्लीकेशंस ऑफ IoT, मैंने बोला आप इसको कहीं पे भी IoT को यूज कर सकते हो. स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट लाइट, मिलिट्री सिस्टम, स्मार्ट सिटी, और आर्डिनो के छोटे छोटे बोर्ड्स आते हैं, तो उसमें हार्डवेयर पॉसिबल है. तो आप उससे करके देख सकते हो कि आप अपने सिस्टम के साथ कैसे अटैच करोगे किसी भी सिस्टम को. मान लो मैंने अपना एक सिस्टम डिजाइन कर लिया, फैब इंडस्ट्री में है हम लोग. अभी तो खैर ChatGPT आ गया, उसके ऊपर बहुत मटेरियल मिल जाता है आपको, कि अगर आपको कुछ भी IoT के लिए आप किसी भी स्ट्रीम में लगाना चाहते हो, आप अपने सेंसर्स खुद से डिजाइन कर सकते हो. बस आपको क्लीन रूम चाहिए होता है, यू कैन डिजाइन सेंसर्स. उसके ऊपर पूरा प्रोसीजर पड़ा है कि आप सेंसर कैसे डिजाइन करोगे. ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, आप डिजाइन कर सकते हो IoT के, है ना. अ, अभी मैंने 3 लेटेस्ट जिन पे काम किया है IoT के प्रोजेक्ट्स. एक मैंने सिलिका बेस्ड फ्रेमवर्क पे काम किया है, ये मेरा पेपर चल रहा है अभी अभी मैंने इसको पूरा पब्लिश नहीं हुआ है. स्मार्ट इंडस्ट्री सिलिकॉन प्रोडक्शन, सिलिका यूजिंग IoT बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग. इसमें थोड़ा AI/ML लगाया फॉर रेनफोर्समेंट लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन. देन आई हैव डन फॉर स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, एंड वन इज फॉर द किडनी हेल्थ मॉनिटरिंग. मतलब पेशेंट की हेल्थ के साथ अपना IoT कैसे मॉनिटर कर सकते हो. तो मतलब विद टाइम आपको थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होना पड़ता है, आप स्टिक नहीं रह सकते किसी एक चीज पे रिसर्च के लिए. मान लो मैं सोच रही थी कि मैं अपना पूरा वही सिस्टम लेके चलूं, तो आई हैव टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स, वही चीज इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, बट बाय डूइंग सम एडवांस थिंग्स. IoT आ गया तो थोड़ा IoT कनेक्ट कर दो, AI/ML आ गया तो AI/ML कनेक्ट कर दो. तो इससे आपका रिसर्च पब्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है, और कुछ नहीं है. सॉफ्टवेयर जो यूज किए गए हैं इसके लिए, सिस्को पैकेट ट्रेसर आता है, पूजा सिमुलेटर आता है, आर्डिनो UNO आता है, रास्पबेरी पाई की किट्स आती हैं अगर आपको वेरीफाई करना है, या FPGA की किट्स आती हैं अगर आपको अपना VLSI सर्किट सिमुलेट करना है. सेम टाइप देयर इज अ रास्पबेरी पाई सर्किट्स आर देयर. तो आप ये सारी चीजें अपनी कर सकते हो, है ना. तो सॉफ्टवेयर मेन है, आपको प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है, आपको वो सॉफ्टवेयर थोड़ा अच्छे से चलाना आना चाहिए, आपको लिटरेचर अच्छे से पता होना चाहिए. यू कैन डू सम रिसर्च, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स योर वेरी हाई टाइम. तब आपका जाके कहीं ये कुछ रिजल्ट निकलता है, देन यू विल राइट द पेपर. फिर पेपर आपका 1-1 साल ले जाता है आपको SCI, अच्छे SCI में पब्लिश कराने के लिए. बट काम अच्छा होगा तो वो पब्लिश हो जाता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको. बट द थिंग इज कि आपका रिसर्च का एरिया क्या है. अगर आप कोई बहुत पुराना रिसर्च का एरिया लेते हो जिसमें बहुत ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है. अगर आप थोड़ा सा लेटेस्ट एरिया ले लोगे रिसर्च का, AI/ML हर कोई लगा रहा है, बट AI/ML आप कहाँ लगा रहे हो, दैट मैटर्स. इट विल गिव यू द बेनिफिशियल रिजल्ट्स, है ना.
So that's all from my side. आपके कोई questions हैं तो आप पूछ सकते हो, है? Thank you, ma'am, for your insightful talk. And we are truly grateful, ma'am, for your time, efforts, and sharing your valuable expertise with us today. Okay. Thank you, everyone, for joining. Thank you. This meeting is ended. Next session will begin at 2 p.m. Okay.